हेलो गाइस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द लास्ट लीव, जो कि क्लास 11th का चैप्टर 7 है। आइए इसे शुरू करते हैं। द लास्ट लीव। इट इज ऑटम, द विंड इज blowing hard. This is autumn. The wind is blowing hard and it is raining heavily. All the leaves on an ivy creeper have fallen, except one. Why does the last leaf fall? Sui and Johnsy, two young artists. Swiss and Johnsy, two young artists, share a small flat. The flat was on the third story of an old house. Johnsy fell very seriously ill in November. She had pneumonia. She would lie in her bed without moving, just gazing out of the window. So her friends become very worried. Become very worried. She sent for the doctor, although he came every day. There was no change in John's conditions. One day, the door took Sue aside and asked her, "Is anything worrying Johnsy?" "No," replied Sue. "But why do you ask?" The doctor said. Johnsy, it seems, had made up her mind that she is not going to get well. If she does not want to leave, Medicines will not help her. She tried her best to make Johnsy take an interest in things around her. She talked about clothes and fashions, but Johnsy did not respond. Johnsy continued to lie still on her bed. She brought her drawing board into Johnsy's room and started painting. To take Johnny's mind off her illness, she whistled while working. सू एंड जॉन्सी, दो युवा कलाकार, एक छोटे से फ्लैट में इकट्ठे रहते थे। फ्लैट एक पुराने मकान की तीसरी मंजिल पर था। नवंबर में जॉन्सी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। उसे निमोनिया हो गया। वे बिना गीत किए अपने बिस्तर पर लेटी रहा करती थी और खिड़की के बाहर झांकती रहती थी। उसकी सहेली सू बहुत चिंतित थी। उसने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर हर रोज आता था, लेकिन जॉन्सी की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। एक दिन डॉक्टर ने सू को एक तरफ बुलाया और उससे पूछा, क्या जॉन्सी को कोई चिंता है? नहीं, सू ने उत्तर दिया। परंतु आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? डॉक्टर ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे जॉन्सी ने यह मन में बैठा लिया है कि वह कभी ठीक नहीं होगी। यदि वह जीवित नहीं रहना चाहती तो दवाइयां उसे ठीक नहीं कर सकेंगी। सू ने बहुत कोशिश की जॉन्सी अपनी चारों ओर की चीजों में रुचि ले। वह उसे कपड़ों और फैशनों के बारे में बात करती, लेकिन जॉन्सी कोई प्रतिक्रिया नहीं करती थी। जॉन्सी चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटी रहा करती थी। सू अपना ड्राइंग बोर्ड
जॉन्सी के कमरे में लाई और चित्र बनाना शुरू किया। जॉन्सी का ध्यान उसकी बीमारी से दूर हटने के लिए वह काम करते हुए सीटी बजाने लगी। Suddenly Sue heard Jonesy whisper something. She quickly rushed to the bed and heard Jonesy counting backwards. She was looking out of the window and was saying 12. After some time, he whispered 11, then 10, then 9, 8, 7. Sue accidentally looked out of the window. She saw an old Evie creeper climbing halfway up and brick wall opposite their windows in the strong wind outside. The creeper was shedding its leaf. What is it, dear? She asked. 6, whispered Jonesy. Whispered Jonesy. They are falling faster now. 3 days ago, there was almost 100 leaves. There are only 5 left now. It is autumn, said Shrew, and the leaves will fall. When the last leaf falls, I will die, said Jonesy with finality. I have known this for the last 3 days. अचानक सू ने जॉन्सी को कुछ बुड़बुड़ाते हुए सुना। वह एकदम उसके बिस्तर की तरफ भागी तथा जॉन्सी को उल्टी गिनती गिनते हुए सुना। वह खिड़की से बाहर देख रही थी और कह रही थी 12। कुछ समय के बाद वह फुसफुसाई 11, फिर 10, फिर 9, 8, 7। उसने उत्सुकता से खिड़की में से बाहर देखा। उसने उसने एक पुरानी आईवी की बेल खिड़की के सामने वाली ईंट की आधी दीवार पर चढ़ी देखी। दिल बेल के पत्ते बाहर तेज हवा में झड़ रहे थे। ये क्या है प्रिय? सू ने पूछा। 6, जॉन सुसाई। वे अब बहुत तेजी से झड़ रहे हैं। इस पर 3 दिन पहले 100 पत्ते थे। इस पे 3 दिन पहले 100 पत्ते थे। केवल 5 बचे हैं। ये पतझड़ है, सू ने कहा। पत्ते तो झड़ेंगे ही। जब आखिरी पत्ता झड़ जाएगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। जॉन्सी ने अंतिम बात कही। मैं इस बात को पिछले 3 दिनों से जानती हूँ। Oh, that's nonsense, replied Sue. What have old ivy leaves to do with your getting well? The doctor is confident that you will get better. Johnson did not say anything. Sue went. They brought her a bowl of soup. I don't want any soup, said Johnson. I am not hungry. Now there are only 4 leaves left. I want to see the last one fall before it gets dark. Then I will sleep forever. Sue sat on Johnson's bed, kissed her, and said, you are not going to die. I cannot draw the certain, for I need the light. I want to finish the painting and get some money for us. Please, my dear friend, she began Johnsy. Promise not to look out of the window
while I paint. ओह, ये बकवास है, सू ने कहा। आइवी की बेल के पत्तों को आपके ठीक होने से क्या लेना देना? डॉक्टर को पूरा विश्वास है कि आप ठीक हो जाओगी। जॉनसी ने कुछ नहीं कहा। सू गई और उसके लिए एक सूप का कटोरा ले आई। मैं कोई सूप नहीं चाहती, जॉनसी ने कहा। मुझे भूख नहीं है। अब केवल 4 पत्ते शेष हैं। मेरे मैं अंधेरा होने से पहले आखिरी पत्ता जन्नत देखना चाहती हूँ। तब मैं सदा के लिए सो जाऊंगी। सू जोन्स के बिस्तर के निकट बैठ गई, उसे चूमा और कहा, आप मरने नहीं जा रही हो। मैं पर्दा नहीं खींच सकती क्योंकि मुझे प्रकाश की जरूरत है। मैं इस पेंटिंग को समाप्त करके हमारे लिए कुछ ध्यान प्राप्त करना चाहती हूँ। कृपया मेरी प्यारी सहेली, उसने जॉन्सी से प्रार्थना की, मुझसे वादा करो कि जब तक मैं पेंट करूं आप खिड़की से बाहर की ओर नहीं देखोगे। ऑल राइट, सेड जॉन्सी, फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वांट टू सी द लीस्ट लीफ फॉल। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, आई हैव टू die. So let me go away peacefully, like one of those poor tired leaves. Try to sleep, said Sue. I have to paint an old miner. I will call Brahman up to be many model. She rushed on. Behrman lived on ground floor. He was 16 years old painter. His lifelong dream was to paint a masterpiece, but that had remained a dream. Sue poured out her worries to Berman. She told him how Jonesy was convinced that she would die when the last leaf fell. Is this stupid? They asked Behrman. How can she be so foolish? She is running a high temperature complaint, sure. She refuses to eat and drink, and that worries I me lot. I will come with you and see Jonesy. Bremen said, uh, हूँ, मैं इंतजार करते हुए थक गई हूँ। मुझे मरना ही है। ठीक है, जॉनसी ने कहा। अपनी पेंटिंग शीघ्र समाप्त कर लो क्योंकि मैं अपने अंतिम पत्ते को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। मैं इंतजार करते हुए थक गई हूँ। मुझे मारना मुझे उस मुझे मरना ही है, इसलिए मुझे शांतिपूर्वक उन थकी हुई एक पत्ती की बातें चले जाने दो। सोने की कोशिश करो, सू ने कहा। मुझे एक बुढ़े खनिक का चित्र बनाना है। मैं बेरमन को अपना मॉडल बनाने के लिए बुलाने जा रही हूँ। सू तेजी से नीचे गई। बहरमन पहली मंजिल में रहता था। वह 7 वर्ष की आयु का पेंटर था। उसकी जिंदगी का स्वप्न एक अति उत्तम कृति बनाना था, लेकिन अभी तक यह विश्वास हो गया है कि बेल के अंतिम पत्ते के गिरने के साथ ही मर जाएगा। क्या वह भूख है? बैरमैन ने पूछा। वह इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है? उसे बुखार है, सोने शिकायत की। उसने कुछ भी खाने अथवा पीने से मना कर दिया और इसे
और इसे और और तुम्हारे साथ चलूंगा और जॉन्सी से मिलूंगा। बैरमैन ने कहा। He was 60 years old painter. His lifelong dream was so to paint a masterpiece, but that had remained a dream. She poured out her worries to Behrman. She told him how Johnsy was convinced that she would die when the last leaves fell. Is she stupid? Asked Brahm, Brahm, Brahman. How can slip? How can she be so foolish? She is running high temperature. Our company, our company. ठीक है, जॉनसन ने कहा। अपनी पेंटिंग शीघ्र समाप्त कर लो, क्योंकि क्योंकि मैं अंतिम पत्ते को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। मैं इंतजार करते हुए थक गई हूँ। मुझे मरना ही है, इसलिए मुझे शांतिपूर्वक उन थकी हुई एक पत्ते की भांति चले जाने दो। सोने की कोशिश करो। सूर्य ने कहा। मुझे एक बुट्टे खाने का चित्र बनाना बनाना है। मैं बैरन का मैं बैरन को अपना माइल बनाने वाले के लिए बुलाने जा रही हूँ। तू सू तेजी से नीचे गई और आसमान और आज सोने की कोशिश करो। सुन ने कहा। मुझे एक बुड्ढे खाने का चित्र बनाना है। मैं बहरमैन को अपना मॉडल बनाने के लिए बुलाने जा रही हूँ। सू तेजी से नीचे गई। बहरम की मंजिल में रहता था। वह 60 वर्ष की आयु का पेंटर था। उसकी जिंदगी का स्वप्न एक अति उत्तम कृति बनाना था, लेकिन अभी तक यह एक सपना ही बना हुआ था। एक सू ने अपनी सारी चिंताएं बहर मन को बताई। उसने उसे बताया कि जॉन्सी को यह प्रबंध पक्का पक्का के साथ ही मर जाएगी। कुछ वे भूखे मूर्ख हैं। बहरमन ने पूछा। वह इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है? उसने बुखार है। सू ने शिकायत की। उसने कुछ भी खाने अथवा पीने से मना कर दिया था और इसके कारण बहुत ही चिंतित हो रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और जॉन्सी से मिलूंगा। बैशमन बैरमन ने कहा। They tiptoed into the room. Jonesy was sleeping. She drew curtains together and they went to the next room. She peeped out through get window. There was only leaf on the creeper. It was raining heavily, and an icy cold wind was blowing. It seemed as though the leaf would fall any minute. Now, Behrman did not say a word. He went back to his room. Jonesy woke up next morning in a feeble voice. She asked She to draw the certain shore was nervous. She drew back that the curtains very reluctantly. Oh,
Sue exclaimed as he looked at the creeper home. Look, look, there is a still one leaf on the creeper. It looks quite green and healthy. In spite of the storm and faces winds, it did not fall. I heard the wind last night, said Johnsy. I thought it would have fallen. It was surely you have to live for your friends. What would happen me to if you die? Johnson smiled weakly and closed her eyes. After every hour or so, she would look out of the window and find the leaf still there. It seemed to be clinging to the creeper. वह चुपके से कमरे में गए। जॉन्सी सो रही थी। वह वे चुपके से कमरे में गए। जॉन्सी सो रही थी। सू ने पर्द हटाई और वह दोनों साथ साथ अकेले कमरे में गए। उनके झांककर खिड़की के बाहर देखा। बेल पर अब केवल एक पत्ता था। मूसलाधार वर्षा हो रही थी और बर्फीला पानी बर्फीली ठंडी हवा चल रही थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो वह पत्ता अब किसी भी क्षण गिर जाएगा। बहरमन ने एक शब्द नहीं कहा। वह वापस अपने काम पर चला गया। जॉनसी अगली सुबह उठी। जॉनसी सुबह अगले उठी। कमजोर सी आवाज में उसने सू के पर्दे हटाने के लिए कहा। यह सू घबराई हुई थी। उसने बहुत ही अनिच्छा के साथ पर्दे हटाए। ओह, सू ने बेल की ओर देखते हुए कहा। देखा देखा बेल पर एक भी पत्ता अब एक पत्ता है। वह बिल्कुल वह बिल्कुल हरा और स्वस्थ दिखाई देता है। जय भयंकर तूफान तथा प्रचंड हवाओं के बावजूद भी यह गिरा नहीं है। मैंने पिछली रात भर हवा चलने की ध्वनि सुनी थी। जॉनी जॉनी ने कहा। मैं सोच कि यह गिर गया। वह आज अवश्य ही गिर जाएगी। तब मैं मर जाऊंगी। तुम नहीं मरोगी, सू ने उत्साहपूर्वक कहा। तुम्हें अपनी सहेली लिए जिंदा रहना है। तुम मर गई तो तुम्हारा क्या होगा? जॉनसन निर्बलता से मुस्कुराई और उसने अपनी आंखें बूंद लीं। प्रत्येक घंटे के बाद वह खिड़की से बाहर देखता और हर बात पत्ते को कहीं पाती थी। यह बेल के लटकता हुआ प्रतीत होता था। In the evening there was another storm, but
The leaf did not fall. Jonesy lay for a long time looking. Then the leaf. Then she called out to Sue. I have been a bad girl. You have looked after me so loving, and I have not cooperated with you. I have been depressed and gloomy. The last leaf has been shown me how wicked I have been. I have realized that it is a sin to want to die. She hushed Jonesy, then she gave her lots of hot soup a mirror. Jonesy completed her hands. संध्या के समय एक संध्या के समय एक और तूफान आया, लेकिन पत्ता बेल से नहीं गिरा। जॉन सी लंबे समय तक पत्ते और एक टक देखती रही। तब उसने सू को बुलाया। मैं एक बुरी लड़की रही हूँ। तुमने इतने प्यार से साथ मेरे देखभाल की है और मैंने तुम्हारे साथ सहयोग नहीं किया। मैं तुम्हारे साथ सहयोग नहीं किया। मैं बहुत हताशा और उदास हो गई थी। अंतिम पत्ते ने मुझे यह दिखा दिया कि मैं कितनी दुष्ट रही हूँ। मैंने अब यह एहसास कर लिया है कि मरने की कामना करना एक पाप है। सू ने जॉन्सी को आलिंगन किया। तब उसने उसे खाने के लिए गर्म सूप दिया और एक शीशा। जॉन्सी ने अपने बालों में कंघी और खुशी से मुस्कुराई। दोपहर बाद डॉक्टर आया। मरीज का परीक्षण करने के बाद उसने सू से कहा, जॉन्सी अब जीने की उम्मीद है। मुझे विश्वास है कि वह शीघ्र ही ठीक हो जाएगी। अब मुझे नीचे जाना चाहिए। वह बहरहम वह बहरमन को देखने के लिए। वह भी निमोनिया से पीड़ित हो रहा है, लेकिन मुझे डर है कि उससे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। दी The next morning, Sue came and sat on Jonesy's bed, taking Jonesy's hand in hers. She said, I have something to tell you, Mr. Bearman. Dad too pneumonia is morning. He was ill for only 2 days. The first day, the janitor found him on his bed. His clothes and shoes were wet, and he was shivering. He had been out in that stormy night. Then they found a ladder and lantern still lighted lying near his bed. There were also some brushes and green and yellow paints on the floor near the ladder. Jonesy dear, said Sue, look out for the window. Look at the that heavy leaf. Have not wondered why it does not floor when the wind blows. That Ramon's masterpiece. He painted it the night the last fell. अगली सुबह सू आई और जॉन्सी के बिस्तर पर बैठ गई। जॉन्सी के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए उसने कहा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मिस्टर बैरमन का निमोनिया से देहांत हो गया। वह पिछले 2 दिनों से बीमार था। पहले दिन इमारत की देखभाल करने वाले व्यक्ति ने उसे बिस्तर पर पाया था और उसके कपड़े और जूते गीले थे। वह कांप रहा था
वह उस तूफानी वह उस तूफानी तब में उन्हें एक सीढ़ी मिली, एक लालटेन। वह सुबह रात में घर से बाहर रहा था, तब उन्हें एक सीढ़ी मिली और एक लालटेन जो अभी अभी बिस्तर के पास जल रही थी। वहां कुछ बुरुश और हरे और पीले पेंट भी सीढ़ी के पास फर्श पड़े थे। जॉन सी प्रिय, सू ने कहा, खिड़की के बाहर देखो, एक आइवी के पत्ते को देखो। क्या तुम्हें हैरानी नहीं हुई कि वह हवा चलने पर क्यों नहीं फड़फड़ाता? वह बैरमन की अति उत्तम कलाकृति है। उसने इसे रात को पेंट किया था जब वह आखिरी पत्रा गिर गया था।